Namaste Gurukulians. Hope you are doing well at home and study continuously by revising notes and videos. So today we are going to start fifth video, that is part 5 of chapter 5 Principles of Inheritance and Variations of class 12th Biology. So this is the fifth video of the same chapter. In first 4 videos we have already covered Mendel laws, Mendel monohybrid cross, Mendel dihybrid cross, various terminologies like monohybrid cross, homozygous, heterozygous, dominant allele, recessive allele, pure hybrids. So in another video we have completed various exceptions to monohybrid or dihybrid cross, and those exceptions were incomplete dominance, pleiotropy, polygenic inheritance and codominance. After that, in next video we have completed the next topic, which is sex determination in different organism, and we have discussed 5 different types of sex determination method. Those methods were XX, XY, XX, XO, ZW, ZZ, like this, and haplodiploidy in honeybee. So that was covered up to 4th video. Now we are starting with 5th video of the same chapter, and today we are going to cover 2 important topics. The first one is chromosomal theory of inheritance. It was given by 2 scientists independently, by Sutton and Boveri. These are surname only. So question will be asked like this only, Sutton and Boveri, in 1902. Now what are the salient features of this theory? Generally Sutton and Boveri gave points which were almost parallel to the Mendelian factors. Means जिस तरीके से मेंडेलियन फैक्टर्स या अलील्स और जीन्स का इनहेरिटेंस पैटर्न था, सेम टू सेम ये उसको कंपेयर करेगा क्रोमोसोम के साथ. सो देयर आर सम salient features. The first point is inheritance units were taken as chromosomes. सेंटेंस थोड़ा गलत लिख दिया, ऐसा होना चाहिए था क्रोमोसोम्स वर टेकन एज इनहेरिटेंस यूनिट. तो इसको थोड़ा ठीक कर लेना. सो क्रोमोसोम्स वर टेकन एज इनहेरिटेंस यूनिट. बट हमने मेंडल में क्या किया था? मेंडल में हमने बोला था कि 2 एलील्स हैं, तो यहाँ पे 2 एलील्स की बजाय 2 क्रोमोसोम्स होंगे, और 2 क्रोमोसोम्स के पेयर को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर. सेकेंड पॉइंट ये बोलता है दैट जीन्स और एलील्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स. तो एक्चुअली में ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एलील्स अलग नहीं होते, अलग क्या होंगे? क्रोमोसोम्स अलग होंगे. अब अलग होने का ये तरीका क्या है? हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा ये चीज़, 11th क्लास में भी. These are 2 chromosomes. Each chromosome is made up of 2 chromatid. मतलब एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये. Both these chromatids are joined at the center by centromere. So this is one chromosome, this is second chromosome. This chromosome come from father, this will come from mother. So each chromosome is having 2 chromatids. So these are chromatids. ऐसे ही 2 chromatids इसके,
and both the chromatid of a single chromosome, they are called as sister chromatids. So these are sister chromatids of this chromosome, these are sister chromatids of this chromosome. If we are assume this like A, B, C, D, A and B are sister chromatids, C and D are sister chromatids, but B and C are non-sister chromatids. Likewise, A and C, A and D, B and D, all these are non-sister chromatids. तो हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम पेयर हैं? 23 क्रोमोसोम पेयर हैं. जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं हम, तो 23 क्रोमोसोम पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम हैं. तो हर एक क्रोमोसोम का एक पेयर जो है, दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर. सो हम कह रहे हैं कि द एलील्स और जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस ऑन द क्रोमोसोम्स. सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट कि अगर एक जीन हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक एलील कैपिटल जी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेम लोकस पे इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी यहाँ प्रेजेंट होगा या स्मॉल जी. ठीक है. सो कैपिटल जी, स्मॉल जी. सो थर्ड पॉइंट क्या होगा? एलील्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस लोकस और लोकाई. लोकस इज सिंगुलर, लोकाई इज प्लूरल. होमोलोगस लोकस in on homologous chromosomes. इस पॉइंट का मतलब क्या है? होमोलोगस लोकाई मीन्स मतलब अगर यहाँ पे जी है तो इसका भी यहाँ पे जी है. छोटा जी यहाँ नहीं हो सकता, स्मॉल जी. ठीक है. तो अगर यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स लेते, डाईहाइब्रिड क्रॉस का लेते, तो यहाँ पे दो जीन्स अलग अलग होते. तो कैपिटल जी यहाँ पे, कैपिटल जी यहाँ पे. दूसरा हमने ले लिया कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी. सो द पोजीशन विल बी, द लोकेशन विल बी ऑलवेज होमोलोगस इन होमोलोगस क्रोमोसोम. फोर्थ पॉइंट, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन chromosomes will separate like Mendelian factors. तो जैसे मेंडेलियन फैक्टर में हमने देखा था कि दो कैपिटल टी थे, जब गैमीट बना तो उसमें से सिर्फ एक ही कैपिटल टी गैमीट में गया था. तो यहाँ पे भी क्या है, दो क्रोमोसोम हैं. तो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन हर एक पेयर में से एक क्रोमोसोम आगे जाएगा गैमीट में. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में मेल की, तो मेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? 46, 46, 23 पेयर्स हैं. तो हर पेयर में से एक क्रोमोसोम आगे जाएगा. किसमें? स्पर्म में. स्पर्म इज गैमीट. So at the time of gamete formation, chromosomes will separate like Mendelian factors, and in case of, and if it is dihybrid cross, then they will also follow law of independent assortment, which makes new combinations.
न्यू कॉम्बिनेशन जैसे हमने देखा था मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हमने किया उसमें 9:3:3:1 की रेशियो आई थी। तो 9 और 1 ये दोनों थे पेरेंटल, जबकि जो बीच में 2, 3 और 3 थे वो थे दोनों रिकॉम्बिनेंट, नए कॉम्बिनेशन। तो इसमें भी क्या होगा, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, पर वो कैसे बनेंगे, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उसके बीच में आपस में क्रॉसिंग ओवर होगी। सो क्रॉसिंग ओवर आपने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा होगा सेल साइकिल वाले चैप्टर में। तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होगा यहीं पे बता देता हूं मैं। सबसे पहली बात कि क्रॉसिंग ओवर विल ऑलवेज टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर। एक क्रोमोसोम पेयर है, ये मान लो फर्स्ट वाला पेयर है। इसके अंदर यहाँ पे जो जीन होगा, मान लो ये पूरा क्रोमोसोम मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, दोनों के बीच में होनी क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होगा, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, एंड देन देयर विल बी न्यू कॉम्बिनेशन विल बी फॉर्म्ड। तो उसके अंदर क्या होगा, इसका पार्ट टूट के इस पे जाएगा, इसका पार्ट इसके ऊपर जाएगा। तो पहले हम दिखाएंगे इसको ऐसे क्रॉस, पर मैं क्रॉस वाला नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो इसका जो पार्ट है वो इसके पास और इसका पार्ट इसके पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्लैंक दिखा दिया प्लेन, और इसको यहाँ पे दिखा दिया डार्क। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है इजीली कि इसका सेगमेंट इसके पास आ गया आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। तो इस सेगमेंट के अंदर जो कोई भी जीन होगा वो जीन अल्टीमेटली कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, और इसका जीन इसके पास आ गया। सो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज न्यू कॉम्बिनेशन विल बी फॉर्म्ड, और नए कॉम्बिनेशन जब बनेंगे तो हरदम उसको बोलते हैं रीकॉम्बिनेशन, और रीकॉम्बिनेशन की वजह से हरदम नए कैरेक्टर्स, नए फिनोटाइप डेवलप होते हैं, नए रिकॉम्बिनेंट्स डेवलप होते हैं। सो दीज वर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कई बार क्वेश्चन आता है राइट द points which shows parallelism or difference between genes and chromosomes, मतलब मेंडेलियन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स। तो दोनों में आपने क्या दिखाना है कि मेंडेलियन फैक्टर्स जो हैं वो भी हरदम पेयर में होते हैं, कैपिटल टी। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी हरदम पेयर में होते हैं। वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सिर्फ 1 एलील जाएगा आउट ऑफ 2। यहाँ पे भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे 2 क्रोमोसोम में से कोई एक क्रोमोसोम ही जाएगा। तीसरा, वहाँ पे भी नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, यहाँ पे भी नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर पैरेलल इन सटन एंड बोवरी थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो ये जो आपका पॉइंट होगा ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा आपका किसी भी हेल्प बुक में, दैट व्हाट इज द पैरेललिज्म बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम्स। दोनों बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पे हम फैक्टर्स की बात करते थे, यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं बस, और कुछ फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम लॉजिक वही है। Now we will move to the important topic, linkage and recombination। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आता, तो थोड़ा पहले ही फोकस करेंगे आप। सबसे पहले लिंकेज होती क्या है, उसकी एक डेफिनेशन है द फिनोमिना ऑफ
the phenomena of certain genes staying together during inheritance without any change due to their close location or position in linear order on a क्रोमोसोम। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक क्रोमोसोम बनाया है, इस क्रोमोसोम के ऊपर मान लो हमारे पास दो जीन हैं, एक मान लो यहाँ पे हमने बोल दिया कैपिटल वाई और यहाँ पे हमने बोल दिया कैपिटल डब्ल्यू। ये कह रहा है कि अगर कोई भी दो जीन जो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे वो हरदम इकट्ठे ही जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, दे विल ऑलवेज स्टे टुगेदर ड्यूरिंग देयर इनहेरिटेंस। और जितना ज़्यादा क्लोज ये होंगे उतने ही कम चांस हैं नए कॉम्बिनेशन बनने के। अब जैसे मान लो वाई और डब्ल्यू का जब हमने क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे करवानी होती है, तो अगर ये y और w दोनों यहीं पे थे और यहाँ पे हम बोल देते हैं छोटा y और छोटा w, स्मॉल y स्मॉल w, तो जब अगर हमने बोला कि भाई ये वाला पूरा सेक्शन उठ के यहाँ आ गया और ये वाला इस पे चला गया, तो आप देखो यहाँ पे भी कैपिटल Y कैपिटल W था, ये पूरा का पूरा इसके पास आ गया तो दोनों इकट्ठे रह गए। ये वाला पूरा का पूरा टूट के इस पे आ गया, ये दोनों भी इकट्ठे रह गए। तो नए कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे। पर अगर ये दूर दूर होते, जैसे मान लो अब की बार मान लो ये W था आपका यहाँ पे और ये W है आपका स्मॉल w यहाँ पे, तो जब इसका ये वाला पार्ट टूट के इस पे गया, सिर्फ इतना पार्ट ये इसके पास और ये ऊपर वाला पार्ट इसके पास गया, तो अब यहाँ क्या होगा? नया कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे? ये वाला पार्ट में था स्मॉल y, तो यहाँ पे था कैपिटल Y, तो कैपिटल Y विल बी रिप्लेस्ड बाई स्मॉल y एंड स्मॉल y विल बी रिप्लेस्ड बाई कैपिटल Y। सो द न्यू कॉम्बिनेशन विल बी स्मॉल y विद कैपिटल W एंड हेयर कैपिटल Y विद स्मॉल w। तो जैसे ही नया कॉम्बिनेशन बना, इट विल ऑलवेज गिव रिकॉम्बिनेंट्स, नया फिनोटाइप। जैसे हमने उसमें देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के 9:3:3:1 की रेशो जो आई थी हमारी, ये पेरेंटल था, ये भी पेरेंटल टाइप था, ये दोनों जो थे ये थे रिकॉम्बिनेंट, नया कॉम्बिनेशन जो बना। ठीक है, तो नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे बनेगा? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। और क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी मियोसिस में, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मियोसिस की पैकेटिन स्टेज। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई कुछ जीन्स का हरदम इकट्ठे ही इनहेरिटेंस होना नई जनरेशन के अंदर विदाउट एनी चेंज ड्यू टू देयर लोकेशन, ड्यू टू देयर क्लोज लोकेशन। जितनी ज़्यादा लोकेशन क्लोज उतनी ही ज़्यादा लिंकेज होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे डिस्टेंस लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक बार ध्यान से देखना इसको। डिस्टेंस बिटवीन
जीन्स, ठीक है। अगर ये हाई है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज क्या होगी, हरदम कम होगी, क्योंकि लिंकेज कब ज़्यादा हुई थी, जब दोनों जीन क्लोज थे। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ही लिंकेज कम, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं नए कॉम्बिनेशन बनने के। सो रिकॉम्बिनेशन विल बी मोर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अगर डिस्टेंस है लेस तो लिंकेज हाई बट रिकॉम्बिनेशन विल बी लेस। तो जब दोनों ज़्यादा नज़दीक होंगे तो हरदम वो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे। पर अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होने के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिंकेज कम हो गई है। सो मोर द हायर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, लेसर विल बी लिंकेज, हायर विल बी रिकॉम्बिनेशन। Lower the distance between the genes, higher will be linkage and lower will be recombination. So this is simple logic. So recombination is formation of new combination. So we have come to the basic idea about linkage and recombination. Now we will move to Morgan experiments to explain linkage and sex-linked inheritance. सो मॉर्गन क्या है? T.H. मॉर्गन, दिस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और इस साइंटिस्ट को बोलते हैं हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? मेंडल को, ग्रीगर जोहान मेंडल। पर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स T.H. मॉर्गन। तो जैसे मेंडल ने कुछ काम किया था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म लिया था उन्होंने पी प्लांट, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिया। दैट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म वाज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म ऑन विच ही हैज परफॉर्म्ड ऑल हिज एक्सपेरिमेंट वाज फ्रूट फ्लाई, and the scientific name is Drosophila melanogaster. ठीक है, फ्रूट फ्लाई। तो सबसे पहले चीज़ कि कई बार ये पूछा जाता है कि भाई लिंकेज वाली स्टडी के एक्सपेरिमेंट किसने दिए थे? T.H. मॉर्गन ने। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसने प्रूव करी थी? अगेन मॉर्गन। सो मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे उसने ये फाइंड किया कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोजोम एंड स्पेसिफिकली वी आर सेइंग एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, तो वो जीन्स जो हैं वो सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, ना कि ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट हैं। तो इस टाइप की जो इनहेरिटेंस उसने फाइंड करी उसको बोला हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मीन्स द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स विच इज रिलेटेड विद विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोजोम, दैट इज एक्स और वाई। मोस्ट ऑफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स और वाई के ऊपर सिर्फ कुछ ही जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लो बार्डनेस इन मेल, दैट इज प्रेजेंट ऑलवेज ऑन वाई क्रोमोजोम। तो आपने देखा होगा कि जो वाई क्रोमोजोम सिर्फ मेल में है
तो मेल के अंदर ही बाल्डनेस की प्रॉब्लम आती है मोस्टली, फीमेल्स के अंदर बाल्डनेस की प्रॉब्लम नहीं आती, जो बाल हमारे उड़ जाते हैं। नाउ वी विल डू द सेम टॉपिक लाइक मेंडल, कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया था, तो हम भी यहाँ पे एक सेम वही चीज़ करेंगे कि टी.एच. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को ही एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्यों चूज किया। सो रीजंस फॉर चूजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म दैट इज ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। सो उसका रीजन क्या थे? सबसे पहला रीजन, इजीली वी कैन इजीली डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल। अब फीमेल जो होती है जनरली दिस इज लार्जर इन साइज एंड हैव ओविपोजिटर। ओवी मतलब एग, पोजिटर मतलब पोजीशन करने के लिए, मतलब दिस इज द साइट फ्रॉम वेयर द ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर विल डिपॉजिट देयर एग। तो ये उस जगह का नाम है ओविपोजिटर। तो फीमेल हरदम बड़ी होगी साइज में, मेल हरदम छोटा होगा। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी produced in single generation। कि जैसे पी प्लांट के अंदर होता है कि भाई हमने एक प्लांट का क्रॉस करवाया, उससे बहुत सारे सीड बने, तो एक ही बार में 100-150 सीड बन गए। तो यहाँ पे भी क्या है कि जो एक बार जो क्रॉस करवाएंगे उससे जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी उसके अंदर भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रूट फ्लाई जो है वो ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही हमारे पास स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारे पास। सैंपल साइज विल बी लार्ज। थर्ड, स्मॉल लाइफ स्पैन, एज ज़्यादा नहीं होती, उम्र इसकी सिर्फ 2 वीक्स की है। तो हम जितनी छोटी लाइफ होगी उतनी ही जल्दी हम इसके कैरेक्टर स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर हाँ ये कहता है कि हम ह्यूमन बीइंग पे ट्राई करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग की तो एक जनरेशन ही 100 साल तक चल रही है, तो उसकी एज भी जितनी ज़्यादा कम होगी एज, उतने ही ज़्यादा हम उसकी नंबर ऑफ जनरेशन्स देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, कैन बी easily grown on yeast culture in glass bottles in lab। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बाहर जाके ही ग्रो करवाएं, लैब के अंदर ग्लास बोटल्स होंगी, उसके अंदर हमने यीस्ट का कल्चर बना दिया, नीचे इतना मोटी थिकनेस होती है उसकी, तो उस कल्चर के ऊपर ही ये ग्रो कर जाएंगी। तो हमें प्रॉपर गार्डन में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हैव ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई, पर इसमें सिर्फ 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम होगी। तो ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली क्या करवा रहे हैं, ये हमारे उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को ईजी बना रहे हैं कि उसकी लाइफ भी छोटी थी, एक ही उसमें जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी उसके अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे, फिर उसकी जो ग्रो करवाना है हमने वो लैब के अंदर करवा सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करवाते हैं, इसको एक फेवरेबल एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं टू स्टडी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।
जैसे अभी हमने बोला था कि भाई कि जितनी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली लोकेटेड जीन्स होंगे एक क्रोमोसोम के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा लिंकेज और उतने ही ज़्यादा पेरेंटल कैरेक्टर। जितनी हाई लिंकेज होगी पेरेंटल कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा, जितनी कम लिंकेज होगी पेरेंटल कैरेक्टर कम और रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा। तो जहाँ भी जब भी लिंकेज होगी तो उसमें क्या होगा, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल में आई थी 9:3:3:1 की रेशियो। तो इस रेशियो की बजाय अब की बार क्या होगा, रेशियो विल डेविएट फ्रॉम दिस रेशियो। ये क्यों होगी, बिकॉज ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो इस चीज़ को स्टडी किया मेंडल ने। तो उसकी जो स्टडी थी उसको एक बार देखते हैं हम। सबसे पहले ही हैज़ टेकन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, जिसके अंदर उसने क्या किया, ही हैज़ टेकन 2 कैरेक्टर डोमिनेंट, रिसेसिव। तो अभी जो आगे एक टेबल बनेगी, एक ग्राफ सा बनेगा, डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को समझने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना है एक बार। ही हैज़ चूजन 2 कैरेक्टर्स। फर्स्ट वाज बॉडी कलर। द डोमिनेंट बॉडी कलर वाज ब्राउन एंड रिसेसिव बॉडी कलर वाज येलो। अब उसने ये नोटिफाई कैसे किया, Y एंड Y प्लस। सो डोमिनेंट विल बी Y प्लस और ब्राउन, रिसेसिव विल बी Y और येलो। कैपिटल Y ले लो या स्मॉल y ले लो, उसने वैसे स्मॉल y ही लिया था, स्मॉल y एंड स्मॉल y, ठीक है। प्लस का निशान आ गया तो मतलब डोमिनेंट है। दूसरा कैरेक्टर लिया उसने आई कलर। जो ब्राउन है इसको हम वाइल्ड भी मानते हैं, वाइल्ड। डोमिनेंट विल बी वाइल्ड। सो आई कलर में रेड डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव। सो वाइट स्मॉल w, रेड स्मॉल w के ऊपर प्लस का निशान, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वाइल्ड। मतलब वाइल्ड जो ड्रोसोफिला होगा उसके अंदर ये कैरेक्टर्स होंगे। वाइल्ड विल बी ऑलवेज डोमिनेंट। थर्ड, विंग साइज। सो विंग साइज में नॉर्मल, so normal will be wild and here it is miniature, मतलब reduced short form में। so miniature का देखना है हमने स्मॉल m और नॉर्मल को देना है हमने स्मॉल m के ऊपर प्लस का निशान। so these were 3 characters which was chosen by Morgan to study linkage and recombination in fruit fly, that is Drosophila melanogaster। तो अब हमने देखना है एक्सपेरिमेंट 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 में उसने क्या किया, he has chosen a female, here it was male, so this is symbol of female, this is male। तो फीमेल है तो लास्ट के जो एज वी आर सेइंग दिस इज ही हैज़ स्टडीड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सो वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। सो सेक्स क्रोमोसोम में एक्स होगा तो दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के हैं, एक्स और वाई होगा मतलब मेल होगा तो वो वाई और एक्स की दोनों की शेप डिफरेंस होगी। सो इसके अंदर हमने ये पेरेंट लिया और इसको हमने ऐसे लिया,
दिस इज वाई, दिस इज एक्स जीन, एक्स क्रोमोजोम, एक्स एंड वाई। तो एक्स क्रोमोजोम जो है उसको जो फीमेल है, फीमेल ली हमने वाई येलो बॉडी वाइट आई कलर, ठीक है। मतलब देखो दोनों के दोनों जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, क्लोजली प्लेस्ड हैं। सो द फिनोटाइप विल बी येलो वाइट, येलो बॉडी वाइट आई, और इस पे लिखेंगे हम Y प्लस एंड W प्लस, ठीक है। सो दिस इज वाइल्ड टाइप। और जब भी हम लिखते हैं वाइल्ड टाइप, इसका मतलब क्या होता है, ये हमने टेबल में लिख दिया था। वाइल्ड टाइप के अंदर कौन से कैरेक्टर होंगे, ब्राउन बॉडी एंड वाइट आई। तो बहुत ध्यान से देखना है कि हमने मेल लिया वाइल्ड टाइप जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट वाले हैं, फीमेल ली हमने दोनों कैरेक्टर जिसके अंदर रिसेसिव वाले हैं, ठीक है। तो अब यहां से जब गैमीट बने तो गैमीट यहां पे एक ही टाइप का बनेगा, वाई डब्ल्यू। यहां से गैमीट क्या बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे, एक ये और एक ये। तो दिस इज वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहां हो गया आपका वाई क्रोमोसोम। इसके ऊपर कोई जीन प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि ऑल द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। सो अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है हमने, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ। तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ और ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो क्या होगा, वाई डब्ल्यू, और यहां से ये आया आपका y प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। सो दिस विल बी फीमेल क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम हो गए। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ y एंड w, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा। जैसे हमें पता है कि दो में से अगर एक भी डोमिनेंट है तो करेक्टर उसी का आएगा। सो दिस विल बी ऑलवेज ब्राउन बॉडी फीमेल और रेड आई। या हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, दिस इज वाइल्ड टाइप, ठीक है। और यहां पे इस मेल का क्या फिनोटाइप होगा, येलो बॉडी एंड वाइट आई। बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो अब जो हमारे पास ये जनरेशन जो आई है, अब इसका हमने करवानी सेल्फिंग में। तो सेल्फिंग में इसी चीज़ को मैं बनाते कॉम्बिनेशन इसके सबसे पहले स्पेस यहाँ पे कम है तो थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ मैं। इसी चीज़ को मैं ऊपर लिख रहा हूँ अब, वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ठीक है। तो नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ वापस। सेम चीज़ यहाँ पे, इसको हमने ये बना दिया, ठीक है। तो जब इसके अंदर क्रॉस होगा
तो यहाँ से गैमीट्स जो बनेंगे उसके अंदर नए कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? फर्स्टली हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंटल टाइप। सो पेरेंटल टाइप में फर्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसे बनेगा? इसका एक एक्स क्रोमोसोम हमने इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ पेयर बनाना है, इसको इसके साथ, तो कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा? वाई डब्ल्यू, वहाँ पे आपका वाई डब्ल्यू। सेकेंड इसका इसके साथ, सो दिस विल बी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस विद वाई डब्ल्यू। थर्ड, अब की बार हमने इस क्रोमोसोम के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो वाई डब्ल्यू विद वाई क्रोमोसोम एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस विद वाई क्रोमोसोम। सो दीज आर 4 डिफरेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? येलो बॉडी एंड वाइट आई कलर, ब्राउन एंड रेड के बजाय हम डायरेक्टली लिखेंगे वाइल्ड टाइप, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं। थर्ड येलो एंड वाइट, एंड फोर्थ वन इज अगेन वाइल्ड टाइप। तो ये तो है हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब अगर इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन या फिर हम बोलेंगे कि क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, तो रिकॉम्बिनेशन में आपने क्या बताया था मैंने कि एक क्रोमोसोम का पार्ट टूट के दूसरे के ऊपर जाएगा। तो जब एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे जाएगा तो ये जीन जो था वो इसके पास चला जाएगा और इसका जीन इसके पास आ जाएगा। तो बुक के अंदर आपको ये जो नया कॉम्बिनेशन वो बना के दिखाया नहीं हुआ है, ना एनसीईआरटी में ना किसी और बुक में। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ बना के देख लो। और इसलिए ये समझ में नहीं आता बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो ये y प्लस गया ऊपर, क्योंकि ये वाला पार्ट टूट के गया यहाँ पे, ये वाला आ गया यहाँ पे। सो कॉम्बिनेशन विल बी y प्लस एंड w, और ये नीचे आ गया था तो ये बन गया y एंड w प्लस। तो अब की बार हमने इस चीज़ को भूल जाना है, हमने क्रॉस बनवाना है इसके बीच में और इसके बीच में। तो ये हरदम क्या है? नया कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिकॉम्बिनेंट्स। तो सेम वही चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ किया था, पहले इसका इसके साथ। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी y प्लस डब्ल्यू विद वाई डब्ल्यू। सेकेंड नीचे वाले का इसके साथ वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। नाउ अब इस क्रोमोसोम का, वाई क्रोमोसोम का इन दोनों के साथ, तो पहले इसको लेते हैं हम, वाई प्लस डब्ल्यू विद वाई क्रोमोसोम एंड वाई डब्ल्यू प्लस विद वाई क्रोमोसोम. So these 4 are recombinant. So what Mendel has found that parental type was 98.7% while recombinants were of just 1.3%. ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो जीन्स लिए थे वो एक ही क्रोमोसोम पे बहुत क्लोजली रिलेटेड थे, तो क्लोजली रिलेटेड होने की वजह से, क्लोजली प्लेस्ड होने की वजह से नए कॉम्बिनेशन बहुत कम बने, और बहुत कम बनने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स जो हैं वो 1.3% रह गए, और जो आपका पेरेंटल टाइप है वो 98.7% ड्यू टू क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम. सो दिस वॉज वन एक्सपेरिमेंट. अब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी उसने सेम ऐसे ही किया, पर उस एक्सपेरिमेंट में उसने जो कैरेक्टर हैं वो थोड़े चेंज कर दिए. तो सेकंड एक्सपेरिमेंट भी करते हैं.
So experiment 2. In this experiment he has chosen body color with wing size. ये चीज़ नहीं ली उसने, क्यों? क्योंकि ये और ये कैरेक्टर के जो जीन थे दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम बट द डिस्टेंस वाज मोर. तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे और इसलिए यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम और नए कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे. सो इन सेकेंड फीमेल मेल मेल वॉज वाइल्ड टाइप. अब वाइल्ड टाइप लिया है तो हमने क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ब्राउन एंड नॉर्मल विंग. तो ब्राउन और नॉर्मल विंग के लिए हमारे पास साइन क्या है, y प्लस एंड m प्लस. अब की बार जीन्स में हमने थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा दिखाया है. ये आपके रिसेसिव वाले हैं फीमेल, तो इसके अंदर हमने दिखाना है y m. तो इसका फिनोटाइप क्या बना, येलो बॉडी विद मिनिएचर विंग. बिकॉज m was the gene for wing size. Now, अब इससे हमने सेम वही क्रॉस बनवाना है, तो इसके लिए गैमीट जो बना वो सिर्फ एक ही टाइप का y m. यहाँ पे दो टाइप के गैमीट बने, y प्लस m प्लस एंड ये. तो एक बार इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, एक बार इसका कॉम्बिनेशन, तो आपका ये बन गया y m y प्लस m प्लस. यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना आपका y m और ये. सो द फिनोटाइप विल बी वाइल्ड टाइप एंड व्हेनेवर वी से वाइल्ड टाइप देन बॉडी कलर विल बी ब्राउन एंड विंग साइज विल बी नॉर्मल. So brown and normal. This will be yellow and miniature. तो जैसे हमने उसमें किया था सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी करना है. अब इसकी जो F2 जनरेशन आएगी, F2 जनरेशन के अंदर दिस इज F2. तो गैमेट के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक बार इसका हमने इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ, ठीक है. y m, इसका भी y m. सो दिस विल बी फिनोटाइप साइड में लिखेंगे हम, येलो एंड मिनिएचर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं MIN. सो बिलो दिस इज F2 जनरेशन. सेकेंड कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ, नहीं ये ना, y प्लस m प्लस y m. सो इसका भी आपका कैरेक्टर होगा वाइल्ड, क्योंकि एक डोमिनेंट आ गया. थर्ड कॉम्बिनेशन इन दोनों का इसके साथ, सो y m y प्लस m प्लस. सो दिस विल बी वाइल्ड, दिस इज yellow and miniature. So the F2 generation, the parental combination were of, these are parental combination, parental was
62.8%। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन वाज 98.7। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे जीन्स जो थे वो क्लोजली प्लेस्ड थे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम बने। क्यों? क्योंकि जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जब भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज होगी कम, और जब भी लिंकेज कम होगी तो रिकॉम्बिनेशन होगा ज़्यादा। तो अब इसका सेकंड वर्जन रिकॉम्बिनेंट टाइप बनाने हैं हमने। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर दिखा के हम एक सेम वैसा ही बनाते हैं कि इसका y प्लस गया ऊपर m, नीचे y एंड m प्लस। तो इसको भूल जाओ, अब हमने इसके और इसके बीच में क्रॉस करवाना है। तो कॉम्बिनेशन सेम वही बनाते हैं हम, y प्लस m, इसको इसके साथ, दिस इज y m। अब इसको इसके साथ ym ym। अब हमने इसके साथ करवाना इन दोनों का। तो थर्ड इज y प्लस m विद y क्रोमोसोम एंड फोर्थ इज y m plus with y chromosome. So the phenotype will be brown miniature। अब देखो ये वाला कॉम्बिनेशन पेरेंट्स में नहीं था, सो दिस इज न्यू कॉम्बिनेशन, ब्राउन बॉडी कलर विद मिनिएचर विंग। दिस इज येलो, नहीं येलो नहीं, हाँ ठीक है, येलो एंड नॉर्मल विंग साइज। अब येलो का नॉर्मल के साथ नहीं था वाइल्ड में, पेरेंट्स जो थे हमारे, सो अगेन नया कॉम्बिनेशन। थर्ड इज ब्राउन मिनिएचर एंड फोर्थ इज येलो नॉर्मल। तो जो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट्स थे, तो रिकॉम्बिनेंट्स में जो मेल होंगे, मेल में हाफ ऐसे और हाफ ऐसे, ऐसे ही रिकॉम्बिनेंट्स में फीमेल हाफ ये वाले और हाफ ये वाले। सो दीज वर recombinants and he has found that the ratio was 37.2%। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया, उसमें था सिर्फ 1.3%, इसमें हो गया 37.2%। क्यों हुआ? क्योंकि इन जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, और यही बात मॉर्गन ने बोली थी कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस जीन के बीच में उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन या उतनी ही कम लिंकेज होगी। सो होप यू विल फाइंड इट ईजी, सो ट्राई टू रिवाइज इट थ्रू वीडियो एज वेल एज थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स। In next video we are going to cover various Mendelian disorders or genetic disorders. Till then, goodbye, thank you.